یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ بی ایکس اسٹیڈیم میں تقریب، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے، مساجد میں ملکی سلامتی اور سربلندی کے لیے دعائیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب۔ پاک فضائیہ کے جوانوں نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈر بھی شریک ہوئے، کتاب میں تاثرات درج کیے۔ ہماری آزادی بہت سی قربانیوں، کاوشوں اور محنتوں کا ثمر ہے۔ یوم پاکستان تحریک آزادی کا روشن باب ہے۔ 23 مارچ 1940 کو آزاد وطن کے خواب کو عملی تعبیر دینے کی بنیاد رکھی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ و انسداد منشیات محسن نقوی نے یوم پاکستان پر اپنے بیان میں کہا، حصول آزادی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے کابرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قرارداد پاکستان مسلمانوں کے لیے الگ اور آزاد ملک کے قیام کی بنیاد بنی۔ چیئرمین پی سی بی نے مزید کہا، 23 مارچ جذبوں کی تعمیر اور خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ 23 مارچ عہد وفا کا دن۔ 1940 میں آج کے دن لاہور میں تاریخی قرارداد پیش کی گئی۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا فریم ورک پیش کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے مینار پاکستان آمد، عظیم دن کی یادیں تازہ کی۔ والدین نے بچوں کو مینار پاکستان کی تاریخی حیثیت کا بتایا۔ ملک بھر میں 23 مارچ قومی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اسی مناسبت سے شہریوں کی کثیر تعداد اہل خانہ سمیت مینار پاکستان پہنچی۔ شہریوں نے مینار پاکستان کے گرد جمع ہو کر تصاویر بنوائیں، جبکہ والدین نے بچوں کو قرارداد پاکستان کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بتایا۔ والدین کا کہنا تھا کہ بچوں میں یوم پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرارداد پاکستان کے مقام مینار پاکستان پہنچے ہیں۔ یہاں پہ جہاں پہ قرارداد پاکستان جب منظور کی گئی تھی، وہاں پہ مینار پاکستان بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں سارا انہوں نے پہلے بھی یاد کروایا گیا، لیکن اب وہ مزار کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ یعنی کہ کہاں پہ ہے۔ انہیں یہ بھی دکھایا گیا، بادشاہی مسجد جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا، وہ بھی دکھائی گئی۔ سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کی جانب سے گریٹر اقبال پارک میں یوم پاکستان کی مناسبت سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ اکمل اویسی پیرزادہ اور ڈاکٹر محمد ریاض کی سربراہی میں نوجوانوں نے واک میں شرکت کی اور وطن عزیز کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ 23 مارچ وطن سے تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے دن منظور ہونے والی قرارداد پاکستان وجود پاکستان کی بنیاد بنی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ یوم پاکستان پر سول ایوارڈ دینے کی تقریب۔ گورنر ہاؤس میں 130 شخصیات کو ایوارڈ دیا گیا۔ صحافتی خدمات پر سلیم بخاری کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد کو ہلال امتیاز ملا۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا اور معروف گائنیکولوجسٹ پروفیسر ارشد چوہان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر محمد آصف، اظہار الحق قریشی، محمد آصف، کاشف سعید کو سول ایوارڈ ملا۔ ڈاکٹر صادق حسین، عرفان سلیم، احمد عطا اللہ سمیت دیگر شخصیات شامل ہیں۔ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں مختلف شخصیات کو اعلیٰ خدمات پر ایوارڈ دیا گیا۔ سینئر صحافی سلیم بخاری کو صحافتی خدمات پر تمغہ امتیاز ملا۔ بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد کو ہلال امتیاز، معروف گائنیکولوجسٹ پروفیسر ارشد چوہان کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ ڈاکٹر جمشید اقبال، ڈاکٹر عابد محمود، پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پروفیسر ڈاکٹر سہیل ندیم، جاوید بشیر احمد، واصف ناگی کو صدارتی ایوارڈ ملا۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا، جمیل احمد، غلام عباس، خالد مسعود خان کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ سلمان غنی، شجر عباس، پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، پروفیسر سجاد نصیر، ڈاکٹر شاہد حمید کو صدارتی ایوارڈ ملا۔ شہباز رفیق، شیخ امجد رشید، فادیہ کاشف، ڈاکٹر محمد سلیم حبیب سمیت دیگر شخصیات نے ایوارڈ وصول کیا۔ ادارہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے خصوصی شرکت کی۔
का इनेकाद नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट माल रोड पर किया गया, जिसकी सदारत सीनियर वाइस चेयरमैन मियां फारूक अल्ताफ ने की। तकरीब में स्कूल के तुलबा और तालबात समेत उनकी फैमिलीज ने भी भरपूर शिरकत की, जबकि तकर्री मुकाबले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, हमारे बुजुर्गों ने नजरिया पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनका ख्वाब और नजरिया यही था कि मेरे बच्चे एक आज़ाद रियासत में जाके सांस लें, और वो कमिटमेंट देखें जिसमें लाखों लोगों की मास डिस्प्लेसमेंट हुई और फिर शहीद देखें, और उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज हमें उसी कमिटमेंट की जरूरत है। तकरीब में सीनियर सहाफी मजीबुर रहमान शामी, आबिद शेरवानी, डॉक्टर सईद अहमद मलिक, शाहिद अकराम सदीकी, कर्नल रिटायर्ड सलीम मलिक, नाहिद इमरान गिल समेत दीगर ने शिरकत की। सीनियर वाइस चेयरमैन अदारा नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट मियां फारूक अल्ताफ ने भी 23 मार्च के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। ये इन्होंने अपना तन मन धन लुटा के हमें पाकिस्तान लेके दिया। हमने तरक्की की, मेहनत की, यही कौन थी? वो लोग मुखलिस थे, लाइफस्टाइल सिंपल था, सादा था, जिंदगी सादी थी, लालच नहीं था। तकरीब के शुरका ने यौम पाकिस्तान के मौका पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल समेत तमाम रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार तकरीबात, रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस, गयूर अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी दीदनी, फ़ज़ा फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। पंजाब में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। COCBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजवा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज परचम कुशाई की तकरीब से किया गया, जिसके बाद मुल्क को कौम की सालमियत और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गयी। इस मौके पर CBD पंजाब के आला अफसरान और तमाम अमला मौजूद था। COCBD पंजाब मंसूर जंजवा का कहना था कि 23 मार्च का दिन हमारी तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए एक अलग मुल्क की बुनियाद रखी थी। टाउन हॉल माल रोड से जिले इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से खसूसी रैली का इनाकाद किया गया। जिले इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान हासिल करने में बेशुमार कुर्बानियां शामिल हैं। अवामी रक्षा यूनियन ने यौम पाकिस्तान मनाने के लिए रैली का एहतमाम किया। रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी ने की। रैली लाहौर प्रेस क्लब से अमेरिकन कौंसलेट तक निकाली गई। मजीद गौरी ने कहा, पाकिस्तान बनाने के लिए हम सब के बड़ों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। हमें चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। लिबर्टी मार्केट एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली की निकाली गई। रैली लिबर्टी मार्केट से शुरू होकर लिबर्टी गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। राना एहसन शराफत की जेर क़यादत रैली में सुहेल मंज, एजाज हफीज, ताहिर शाह, शफीक मुराद, आगाज शहजाद शरीक हुए। सुहेल सरफराज मंज ने कहा, हम आजाद कौम हैं, भरपूर तरीके से ये दिन मना रहे हैं। गवर्नमेंट APS बॉयज स्कूल मॉडल टाउन में यौम पाकिस्तान के मौका पर तकरीब हुई। डॉक्टर अदरीस राना और डिप्टी DO मॉडल टाउन शाहिद अली ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका ने कहा, शहादत पाकिस्तान ने मुसलमानों को बरसगीर पाको हिंद में अपनी पहचान दी। तकरीब में तुलबा ने मिली नगमे उतराने भी पेश किए। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करने की तैयारियां। मुफ्त इलाज मुआवजे के लिए हेल्थ कार्ड के बजट में इजाफा होगा। हेल्थ कार्ड में मजीद 60 अरब रुपए के सालाना अखराजात शामिल होंगे। हेल्थ कार्ड का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। महकमे सेहत पंजाब ने इब्तदाई प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। हुकूमत हेल्थ कार्ड को नए सिरे से शुरू करने का प्लान तैयार कर रही है, जिसमें महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक हेल्थ कार्ड में 60 अरब रुपए के सालाना अखराजात मजीद शामिल होंगे। लाहौर और पंजाब भर में शहरियों के मुफ्त इलाज मुआवजे पर हेल्थ कार्ड का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई प्लान हुकूमत को पेश कर दिया है। कबीना की मंजूरी के बाद हेल्थ कार्ड को रीडिजाइन करने की मंजूरी दी जाएगी। प्लान के मुताबिक हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराए जा सकेंगे। दस्तावेजात के मुताबिक हेल्थ कार्ड का सालाना बजट 1 अरब तक पहुँचाया जाएगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सफ़ेद पोश तबके के सार्फिन के लिए सब्सिडी ख़ाब बन गई। यूटिलिटी स्टोरों पर सफ़ेद पोश तबका महंगाई की चक्की में पिसने लगा। खते गुर्बत से नीचे आने वाले खानदानों को तो हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर भी रिलीफ दे रही है और घरों में भी पंजाब हुकूमत ने राशन पैक फराहम किए, मगर सफेद पोश तबके के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। उनके दुखों का मदावा ना तो ओपन मार्केट में हो रहा है और ना ही यूटिलिटी स्टोरों पर इन्हें रिलीफ मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर सफेद पोश तबका आटा और चीनी, घी सब महंगे दामों खरीद रहा है। सफेद पोश तबके के लिए आटा, चीनी और घी बेनजीर प्रोग्राम में भी रजिस्टर्ड सार्फिन की निस्बत दुगनी कीमत
पर मिल रहा है। बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफ को 10 किलो आटा 650, आम सारिफ 1370, यूटिलिटी घी आम सारिफ 435, जबकि बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 335, चीनी आम सारिफ 155 और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन को 109 रुपए फी किलोग्राम मिल रही है। सूबे भर के 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों को फंड्स की अदम फराहमी का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 56 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की फराहमी के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। लाहौर के स्कूलों को 8 मिलियन और मुल्तान के स्कूलों को 6 मिलियन रुपए जारी किए जाएंगे। हाफिजाबाद 80 मिलियन, झंग 20 मिलियन और साहिवाल को 6 मिलियन जारी होना है। चिन्योट 7 मिलियन, गुजरांवाला 27 मिलियन और गुजरात को 5 मिलियन रुपए जारी होना है। जेहलम 34 मिलियन, खोशाब 30 मिलियन, लिया 40 और डीजी खान को 35 मिलियन जारी होना है। फंड्स फौरी तौर पर मुतल्लिका अथॉरिटीज को जारी किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक फंड्स न होने के बाइस स्कूलों में शजरकारी मुहिम समेत तरक्याती काम नहीं हो रहे। एलडीए शोबाई टाउन प्लानिंग ने डीजी एलडीए के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शोबाई टाउन प्लानिंग जोन 4 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार हो गई। ये दफातर के पास मेन रोड पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। अल्लाहू गोल चक्कर पर साल से बंद पड़ी बिल्डिंग की गैर कानूनी कन्वर्शन जारी है। सामने बोर्ड आवेजा करके गैर कानूनी फर्स्ट फ्लोर तामीर किया जा रहा है। शौकत खानम फ्लाईओवर के बाद खयाबाने फिरदौसी पर घरेलू बिल्डिंग की कमर्शियल कन्वर्शन जारी है। कमर्शियल कन्वर्शन पर पार्किंग की जगह भी नहीं छोड़ी गई। गैर कानूनी तामीर को छुपाने के लिए पूरी बिल्डिंग को सब्ज कपड़े से ढांप दिया गया है। वाबडा टाउन में मेन बुलेवार्ड पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी हैं। जोन 4 में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में भी अमले की मिली भगत से तामीरात जारी हैं। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की जानिब से बिल्डिंग्स के आगे मंजूरी लेटर आवेजा करने के अहकामात भी उड़ा दिए गए। बिल्डिंग पर नक्शा मंजूरी के बोर्ड्स भी आवेजा न किए जा सके। वज़ीर आला मरियम नवाज के सयाहत को फरोग देने के लिए मंसूबों को बड़ा धचका। सयाहों की सहूलतकारी करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज करप्शन का गढ़ बन गया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज में मेगा करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के मुख्तलिफ हेड्स के 30 करोड़ 61 लाख 15,252 रुपए खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज करप्शन में इंक्वायरी रिपोर्ट ईवान वजीर आला और सेक्रेटरी टूरिज्म को अरसाल कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर को कसूरवार करार दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में पीओएल, कन्वेंस चार्जेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस, पब्लिसिटी, कास्ट स्टोर, कंप्यूटर स्टेशनरी, कोरियर, हॉट एंड कोल्ड मौसमी चार्जेस, टीएडीए, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस, एंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट्स के हेड से बगैर किसी रिकॉर्ड के फंड्स खर्च किए। लैपटॉप, ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स खरीदे गए। मिसिंग आइटम्स की 85 लाख रुपए की रिकवरी की सिफारिश की गई है। मुख्तलिफ हेड से खर्च किए गए फंड्स का कोई मुसद्दिका रिकॉर्ड नहीं पाया गया। इंक्वायरी कमेटी ने डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब हो गया है। अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी बिजली के तारों के लटकते गुच्छों और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के सबब भी शदीद परेशान हैं। बर्ड कॉलोनी गड़ी शाहों में सीवरेज का नाकिस निजाम। सीवरेज का जमा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। आलूदा और ताफुन ज़दा पानी में गिरकर बच्चे जख्मी होने लगे। लोगों का कारोबार ठप होकर रह गया। बदबू और ताफुन से इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गाजी रोड गजुमता में इंतजामिया दम तवज्जा के बाइस रहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके की मुताद्दद सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाके में सीवरेज का निजाम दरम भरम होकर रह गया। खुले गटर बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। हाई वोल्टेज तारे जमीन को लगने लगी। मकीन बदतरीन सूरत हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मसाइल हल किए जाएं। बेगम रोड मुजंग में बिजली के लटकते बेहंगम तार किसी भी इंसान की मौत और बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इंतहाई निचली सतह पर लगे मीटर्स और बिजली के झूलते तारों ने इलाका मकीनों की जिंदगी जीरन कर रखी है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई साल से बिजली के लटकते तारों की वजह से हम खौफ में मुब्तला हैं। रहमान स्ट्रीट मुस्लिम टाउन की मुताद्दद गलियां सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बाइस तबाह। इलाका मकीनों का कहना है शिकायत दर्ज करवा कर थक गए, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज खराब होने से कोई गाहक नहीं आता और हमारे
हमारे कारोबार भी मुतासिर होकर रह गए हैं। चौक बाबा आजम इचरा की सड़क तबाहाल हो गई। सड़क की तबाहाली के बाइस अतराफ में मौजूद दुकानदारों के कारोबार मुतासिर होकर रह गए। मकीनों और सड़क से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर मौजूद गड्ढे ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने लगे, जबकि पैदल गुजरने वालों को भी मसाइल का सामना है। राजा पाक जरार शहीद रोड भैंसों की आमाजगाह बन गया। जगह जगह कूड़े के ढेर, सीवरेज का पानी जमा, इलाका मकीन परेशान, जबकि बच्चों के झूले भी तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नायाब होने लगे। कई इलाकों में सूरत हाल अबतर हो चुकी है। वापडा टाउन के उकब में वाक़या एवन सोशल वेलफेयर सोसाइटी में वाक़ फिल्टर प्लांट 1 साल से बंद है। मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। ब्लॉक C1 जोहर टाउन इंतजामिया की गफलत की भींट चढ़ गया। खस्ता हाल झूले और पार्क में सीवरेज का आलूदा पानी जमा होने से जहां बच्चे पार्क में खेलने से कासिर हैं, वहीं फैमिलीज भी चहलकदमी करने से महरूम हैं। थाना लोहारी गेट से SP सिटी काजी अली रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी और पतंग साजी के खिलाफ 200 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सिटी डिवीज़न में बड़ी तादाद में पतंगें पकड़ी गई हैं। मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। इन 233 में आप परसेंटेज उठा के देख लीजिएगा, मैं बड़े सेफली कह सकता हूँ कि 20% वो लोग नज़र आएंगे कि जो उड़ाने वाले हैं, 80% वो लोग होंगे जो या मैन्युफैक्चरर हैं या थोक के हिसाब से पतंग आगे सप्लाई करते हैं। हमने ना सिर्फ जो ऑन ग्राउंड फिजिकली बेचने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, बल्कि ये धंधा अब बाकी तिजारत की तरह ऑनलाइन भी शिफ्ट हो गया है। तो ऑनलाइन भी हमने परचेज करके उनको भी ट्रैप करके उनके खिलाफ भी हमने जो है वो केसेस जो है वो रजिस्टर किए। हमने इस दफ़ा मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई की है बनिस्बत जो बच्चे छतों पे उड़ाते हैं और शुगल के लिए जो उड़ाते हैं उनके। नंबर 1 सुथरा पंजाब मुहिम जारी है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने LWMC की टीमों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में सफाई इंतजामात का जायज़ा लिया। बिलाल यासीन ने सुथरा पंजाब मुहिम के दौरान सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए कच्चा रावी रोड, बाग मुंशी लद्दा, इसके अलावा कसूरपुरा, जम्मू वाला खूह का भी दौरा किया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मुहिम कामयाब बनाएंगे। उन्होंने हिदायत की कि इंतज़ामिया तमाम इलाकों में सफाई ऑपरेशन को प्रोफेशनल अंदाज में चलाए। शहरी अपने गिरदो नवाह में सफाई का खास ख्याल रखें। मुहिम के तहत बाज़ारों, पार्क्स और चौराहों की सफाई मुहिम में 100 से ज़ायद ऑपरेशनल गाड़ियों ने हिस्सा लिया। साबिक चेयरमैन PCB और मारूफ सफारतकार शहरियार खान इंतकाल कर गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। शहरियार खान हफ्ते की सुबह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी 4:30 बजे घर पर अचानक तबीयत ख़राब हुई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शहरियार खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम 29 मार्च 1934 को लखनऊ में पैदा हुए थे। इब्तिदाई तालीम भी वहीं हासिल की। तकसीम हिंद के बाद फैमिली समेत पाकिस्तान आ गए। शहरियार खान पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा और 2 बार चेयरमैन PCB रहे। शहरियार खान की उम्र 89 बरस थी। पसमानदगान में बेवा और 4 बच्चे शामिल हैं। डार सुपर क्रिकेट लीग में लायंस ने ड्रैगन्स को 83 रन से शिकस्त दे दी। ख्वाजा हामिद 49 रन के साथ नुमाया रहे। अलीम डार क्रिकेट ग्राउंड जोहर टाउन में खेले गए मैच में डार लायंस ने पहले खेलते हुए 25 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। ख्वाजा हामिद ने 49, असद मलिक और हसन तिरमजी ने 25-25 रन की इनिंग्स खेली। ड्रैगन्स की तरफ से आयान महमूद ने 4 और अरहम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में डार ड्रैगन्स की पूरी टीम 83 रन की मजमूए पर ढेर हो गई। आदिल जब्बार 24, वजीउल हसन ने 22 रन की इनिंग्स खेली। फातेह टीम की जानिब से ख्वाजा हामिद ने 14 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को मैदान बदर किया। फैसल मीर T20 वेटरन क्रिकेट कप में लाहौर मोहम्मदन ने ब्राइट मॉर्निंग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाह फैसल टाउन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में ब्राइट मॉर्निंग ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 144 रन बनाए। फैसल पीरजादा ने 66, काशिफ हसन ने 24 की इनिंग्स खेली। लाहौर मोहम्मदन की जानिब से मोहम्मद हुसैन ने 3, आसिफ यूनुस और आतिफ मजीद ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में लाहौर मोहम्मदन ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। खुरम सिद्दीक ने 73, कदीर खान ने 44 रन की इनिंग्स खेली। हसन रजा, नेमत अली नुमाया रहे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।